we are reading chapter number 3, Electoral Politics. And in the previous video, we had studied that why elections and the competition in the election is good or bad. And now today we will read about what is our system of elections. So let's start. Lok Sabha and Vidhan Sabha, that means assembly, elections are held regularly after every 5 years. After 5 years, the term of all the elected representatives comes to an end. The Lok Sabha or Vidhan Sabha stands dissolved. Elections are held in all constituencies at the same time, either on the same day or within a few days. This is called a general election. लोकसभा और विधानसभा के जो इलेक्शन है वो 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल में रेगुलरली इलेक्शन होते रहते हैं और जैसे ही टर्म समाप्त होती है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाते हैं। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो इलेक्शंस होते हैं वो या तो सेम डेज में होते हैं या फिर बिल्कुल कम दिनों के अंतर में होते हैं और इसे जनरल इलेक्शन कहा जाता है। Dear children, you have to read the chapter deeply and carefully, and word to word I will give you only summary. So now electoral constituencies. In our country we follow an area based system of representation. The country is divided into different areas for purposes of elections. These areas are called electoral constituencies. The voters who live in an area elect one representatives. हमारा जो देश है उसमें इलेक्शन के हिसाब से जो हमारा देश है उसको एरिया वाइज डिवाइड कर लिया गया है और जो वोटर होते हैं वो एक एरिया में एक ही रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। फॉर लोकसभा इलेक्शंस द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमपी। One of the features of a democratic election is that every vote should have equal value. अब हमारा जो देश है उसमें लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिसमें से कि हर एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर के पहुंचता है पार्लियामेंट में और उसे एमपी बोलते हैं। डेमोक्रेसी में हर वोट का इक्वल वैल्यू होता है। जो हमारा देश है उसे स्टेट्स में डिवाइड कर लिया गया है एंड ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी। इन दिस केस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। ईच पार्लियामेंट्री constituency has within its several assembly constituencies. The same principle applies for panchayat and municipal elections. Each village or town is divided into several wards that are like constituencies. Each ward elect one member of the village or the urban local body. Sometimes these constituencies are counted as seats. For each constituency represent one seat in the assembly. अब हर स्टेट में उस जो हमारा देश है उसको स्टेट्स में डिवाइड कर लिया गया है और जो स्टेट है उसे भी एरिया वाइज डिवाइड कर लिया जाता है और हर एरिया से रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के लिए चुने जाते हैं और उन्हें एमएलए बोला जाता है। अब हर पार्लियामेंट में इसी तरह से सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और इस तरह से असेंबली बनती है। अब इसी तरह से पंचायत के भी चुनाव होते हैं और म्यूनिसिपल इलेक्शंस के भी चुनाव होते हैं। गांवों में भी इसी तरह से चुनाव होते हैं और सभी इन गांवों को और टाउन को डिवाइड कर लिया जाता है वार्ड में और फिर वार्ड के अकॉर्डिंग इलेक्शन होते हैं और वन रिप्रेजेंटेटिव हर वार्ड से चुना जाता है। इस तरह से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ से एक सीट जो है वो हमारे पार्लियामेंट में दी जाती है। तो ये हमारी उसे हम सीट भी कहते हैं। जैसे एक मतलब इस सीट से ये रिप्रेजेंटेटिव चुना गया, इस तरह से भी बोला जाता है। Observe these maps and if any doubt you can ask me in the doubt class. Now reserved constituencies. The makers of our constitution thought of a special system of reserved constituencies for the weaker sections
Some constituencies are reserved for people who belong to the scheduled caste and scheduled tribes. In a SC reserved constituency, only someone who belongs to the scheduled caste can stand for election. Similarly, only those belonging to the scheduled tribe can contest on elections from a constituency reserved for ST. Currently, in the Lok Sabha, 84 seats are reserved for the scheduled caste and 47 for the scheduled tribes as on 26 January 2019. This number is in proportion to their share in the total population. Thus, the reserved seats for SC and ST do not take away the legitimate share of any other social group. अब हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सोचा और उसके बाद जो पिछड़े वर्ग हैं उनको आगे लाने के लिए उन्होंने सीट्स को रिजर्व कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा जो संविधान है उसमें जो पिछड़े लोग हैं उनके पास उतना पावर नहीं है और यदि उन्हें रिजर्व सीट्स नहीं दी गई तो वो आगे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए SC और ST को रिजर्व सीट दी गई है। तो वर्तमान में लोकसभा में 84 सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए दी गई हैं और 47 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व की गई हैं और इन सीटों पर कोई दूसरा ग्रुप नहीं लड़ सकता है। जो इस रिजर्व कैटेगरी को बिलोंग करता है वही इन सीट पर चुनाव लड़ सकता है। नाउ वोटर लिस्ट। Once the constituencies are decided, the next step is to decide who can and who cannot vote. In a democratic election, the list of those who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone. This list is officially called the electoral roll and is commonly known as the voter list. अब एक बार कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो डिसाइड हो गई तो फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि कौन वोट दे सकता है कौन नहीं। तो ये डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो लिस्ट है वो हर बार तैयार की जाती है, क्योंकि कुछ लोग नहीं रह जाते हैं, कुछ प्रदेश बदल देते हैं, इसलिए नई लिस्ट फिर से तैयार की जाती है और इस लिस्ट को वोटर लिस्ट बोला जाता है। The first condition of a democratic election, everyone should get an equal opportunity to choose representative. सबसे पहला डेमोक्रेसी का यही रूल है कि हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी हो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने की। In our country, all the citizens aged 18 years and above can vote in an election. Every citizen has the right to vote regardless of his or her caste, religion or gender. Some criminals and persons with unsound mind can be denied the right to vote but only in rare situations. अब हमारे देश में 18 ईयर्स से ऊपर जितने भी लोग हैं उन सभी को वोट डालने का अधिकार है। किसी भी तरह का इसमें लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। सिर्फ कुछ ही कंडीशन में जो कि मेंटली डिस्टर्ब है या जिनके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा आपराधिक मामले चल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को वो वोट नहीं डालने दिया जाता, लेकिन वो भी बहुत रेयर सिचुएशन में ऐसा होता है। For voting, the voters can show many other proofs of identity like the ration card or the driving license और वोटर कार्ड एक्सेट्रा। अब इलेक्शन में वोट डालने के लिए जो आइडेंटिटी होती है, वोटर लिस्ट में जो नाम होता है वो इशू किया जाता है कार्ड। उसके साथ साथ लोग सिर्फ वोटर कार्ड ही नहीं बल्कि राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और ये सब चीज़ें दिखाकर भी वोट डाल सकते हैं। स्टूडेंट, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली एंड केयरफुली. I will give you only summary and important points. Now, nomination of candidates. Every person who wishes to contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Recently, a new system of declaration has been introduced on direction from the Supreme Court. Every candidate has to make a legal declaration giving full details of serious criminal cases pending against the candidate, details of the assets and liabilities of the candidate and his or her family, and educational qualification of the candidate. अब हमारे देश में सभी को ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है, वो चुनाव के लिए अपना नाम दे सकता है, नॉमिनेशन फॉर्म वो भर सकता है। उसके लिए उसे कुछ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी होती है और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभी नियम निकाले हैं कि कुछ डिक्लेयर पॉइंट्स करने होंगे कैंडिडेट को अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये कि उसके खिलाफ में कोई पेंडिंग केस ना चल रहा हो, उसे अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है उसकी फैमिली में है, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है उसकी सारी डिटेल और इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें उसे अपने फॉर्म में मेंशन करनी होती हैं।
अब यहाँ एक क्वेश्चन उठता है, आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि यदि हर जॉब के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है तो फिर चुनाव लड़ने के लिए क्यों नहीं। यदि लेकिन ऐसा होता है, यदि चुनाव लड़ने के लिए भी एक निश्चित बीए या एमए इस टाइप की क्वालिफिकेशन निश्चित कर दी जाए तो इससे ये होगा कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो इस जो नॉमिनेशन फॉर्म है ये नहीं भर पाएंगे, वो कंटेस्ट इलेक्शन के कंटेस्ट से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हमारे देश में जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं की जा सकती है, वो ज़रूरी नहीं की जा सकती है। ईयर इलेक्टोरल रोल 2018 स्टेट मिजोरम, ये आपको दिया गया है। यू हैव टू रीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास। नाउ इलेक्शन campaign. The main purpose of election is to give people a chance to choose the representative, the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representative, which party will make a better government or what is good policy. This is what happens during elections campaigning. अब ये बहुत ज़रूरी है कि लोग जाने, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें और यदि वो बाद में बीच में गड़बड़ काम करने लगा है तो फिर से दोबारा रिप्रेजेंटेटिव चुन सकें। और ये सारी चीज़ें करने के लिए समय समय पर रेगुलरली हमारे यहाँ चुनाव होते रहते हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं, ये सारी चीज़ें कैसे जानेंगे, बहुत ज़रूरी है जो जनता है वो ये सारी चीज़ों को जाने। और इसलिए जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कैंपेनिंग के द्वारा, इलेक्शन कैंपेनिंग के द्वारा ये सारी चीज़ें जनता तक पहुंचाते हैं कि हम क्या क्या काम करेंगे आपके हित में और क्या क्या काम हमने किए हैं या हम कौन कौन से काम करना चाहते हैं। In election campaigns, political parties try to focus public attention on some big issues. They want to attract the public to that issue and get them to vote for their party on that basis. और इसी आधार पर फिर वो अपनी पार्टी के लिए वोट लेना चाहते हैं, पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं कि हम बड़े बड़े इश्यूज़ जो रहते हैं उस पर वो काम करेंगे। और यदि कोई अपोजिशन वाले हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं तो वो सारी चीज़ें जनता के सामने लाते हैं और इस तरह से वो अपनी पार्टी को जनता को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने पार्टी के लिए। अब here is successful slogans given from the different parties. You have to read these slogans deeply. According to our elections law, no party or candidate can bribe or threaten voters, appeal to them in the name of caste or religion, use government resources for election campaign, and spend more than 25 lakh in a constituency for a Lok Sabha election and rupees 10 lakh in a constituency in an assembly election. अब हमारे देश में इलेक्शन का रूल बना हुआ है, उसके हिसाब से जो कैंडिडेट होता है किसी वोटर्स को किसी भी तरह की ब्राइब नहीं दे सकता है, घूस नहीं दे सकता, उसे डरा नहीं सकता है, कास्ट और रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकता है, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकता है इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, प्रचार के लिए। और इसके साथ साथ वो लोकसभा के चुनाव में 25 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च नहीं कर सकता है और जो राज्यसभा के चुनाव उनके लिए 10 लाख रुपीज़ से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता है। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। यहाँ तक अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो इलेक्शन है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, यहाँ तक कि यदि वो चुन लिए गए हैं, मेजॉरिटी में आ गए हैं, तब भी वो हटा दिए जाता है। All the political parties in our country have agreed to a model code of conduct for election campaigns. According to this, no party or candidate can use any place of worship for election propaganda, use government vehicles, aircrafts and officials for elections, and when elections are announced, ministers shall not lay foundation stones of any project. अब जो सारी पार्टीज़ हैं उन्होंने ये जो हमारे मॉडल है, कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको स्वीकार किया है और वो यदि एक बार इलेक्शन की घोषणा हो गई तो फिर वो किसी भी वर्शिप वाले स्थान पर वो इलेक्शन प्रोपेगेंडा के रूप में उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट व्हीकल, एयरक्राफ्ट्स, ये सारी चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यदि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो गया तो मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी भी तरह का जो उद्घाटन वगैरह है किसी प्रोजेक्ट का, वो सारी चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। Now polling and counting of votes. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day. अब जिस दिन इलेक्शन
होता है, वोटर जिस दिन पोल पर जाकर के वोट डालते हैं उस दिन को इलेक्शन डे बोला जाता है, और जहां वोट डालते हैं वो पोलिंग बूथ कहलाता है। अब कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं कि क्या इलेक्शन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि इलेक्शन का भार आम जनता पर ही पड़ता है। तो आप इसको देखें, रीड करें और समझें और फिर डिस्कस करें डाउट क्लास में कि क्या वाकई में इलेक्शन जो हैं वो महंगे होते हैं। Nowadays, electronic voting machines EVM are used to record votes. The machine shows the name of the candidate and the party symbols. Independent candidate to have their own symbols allotted by election commission. All that the voter has to do is to press the button against the name of the candidate she wants to give her vote. Once the polling is over, all the EVMs are sealed and taken to a secure place. A few days later, on a fixed date, all the EVMs from a constituency are opened and the votes secured by each candidate are counted. The agents of all candidates are present there to ensure that the counting is done properly. The candidate who secures the highest number of votes from a constituency is declared elected. अब आज के समय में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होती है वह यूज़ की जाती है वोट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। उसमें कैंडिडेट के नेम होते हैं लाइन वाइज और उसके सामने उनके सिंबल होते हैं। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होता है जो किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करता, उसको इलेक्शन कमीशन अलग से सिंबल देता है, और जो वोटर होता है उसे जिस भी व्यक्ति को वोट देना चाह रहा है उसके आगे बटन लगा होता है, उसे वो क्लिक करता है और उसमें दबाता है, पुश करता है, और उसके बाद वो वोट उसका डल जाता है। एक बार पोलिंग ओवर होने के बाद, वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है और उसके बाद एक सिक्योर प्लेस पर रख दिया जाता है। एक फिक्स डेट में काउंटिंग की एक फिक्स डेट की जाती है और उसमें ईवीएम जो होती हैं वो ओपन की जाती हैं और फिर वहाँ पर वोट्स की काउंटिंग की जाती है। हर पार्टी का जो एक एजेंट होता है वह वहाँ पर बैठा होता है ताकि वो देख ले कि कहीं पर काउंटिंग में कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, वो सेटिस्फाई रहे, और जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो उसे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वह पार्टी जीती है। नाउ हियर इज क्वेश्चंस गिवन, यू हैव टू डू दीज, आइडेंटिफाई एंड फेयर एंड अनफेयर इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस एमंग द फॉलोइंग। आपको बताना है कौन सी फेयर एक्टिविटी है और कौन सी अनफेयर एक्टिविटी है। यू हैव टू डू दिस इन योर फेयर नोटबुक। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो।